घर घर अंदर धर्मशाल साहिब ने गुरु नानक की कृपा की है। आओ सब तो पहला फतेह नाल सांझ पा के साहिब अगे शीश झुका के चौधरी करिए कि साडे वर्गे कलयुगी जीवां दे उत्ते साई रहमत करे दस कर बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। जदों एक समा आउंदा है कि जदों दुनिया के शहनशाह धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दुनिया नूं तारन दी खातर घरों तुरदे ने तां एक दिन की हुंदा है सच्चे पातशाह जी नाल भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी वचन करते ने कि सिखा अज आपां किसी विशेष खास इंसान को मिल के आना ते भाई मरदाना जी भाई बाला जी सोचते नहीं कि पता नहीं कौन खास होएगा ते चलो गुरु साहब जी की मौज है ते जिथे गुरु साहब लैके जाएंगे असी सेवक हाँ असी सेवादार ते उथे जाना साडा पहला फर्ज है। ते गुरु साहब आप निरंकार ने किसे अगामी खिच दे विच गुरु साहब जी बड़ी तेजी नाल अगे जा रहे ने। कदे भाई मरदाना ते कदे भाई वाला जी कोशिश करते हैं कि असीं गुरु साहब के नाल रल जाइए पर उन्हां तों रल नहीं। वो फिर कोशिश करते हैं कि गुरु साहब जी फिर अगे निकल जाते हैं ते गुरु साहब किसी नगर के विच प्रवेश करते हैं ते जदों गुरु साहब अगे जाते हैं ते भाई मरदाना जी भी सोचते हैं कि गुरु साहब जी हो सकता है इस नगर दे विच किसी दे घरे जाण किसी दे घर नूं पवित्र करन ते जदों
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਅਨਾਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
हो सकता है मैं पहला ये वचन आखदा कि हो सकता है तुहाडे महल्ले तुहाडे इस एरिए दे विच तुहाडे तो ज़्यादा अमीर ज़्यादा रुतबे वाले हाईली रिप्यूटेड पर्सन रहते होणगे, पर सच जाणियो जिहड़ी गुरु नानक दी गोद विच बैठण दा मौका मिलिया वो तुहानूं मिलिया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे माता पर। गल्लां करन वाले बहुत ने, जिवें भाई लालो ने गुरु नानक दे चरनां नाल प्रीत पाई, गुरु नानक खिंचे चले आउंदे सी। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने गुरु नानक के चरनां नाल ऐसी प्रीत पाई कि गुरु नानक जिवें भाई लालो के घर खिंचे गए तो गुरु नानक बाबा आनंद सिंह जी वाल भी खिंचे गए। सच जाणियो भागों वालियो, जदों असीं गुरु के चरनां दे नाल प्यार पा लैंदे आ ना, सानूं जिंदगी दी वो दौलत वो सुख मिल जाता है जिहड़ा सुख कदे खत्म नहीं होता। इस करके अज असीं सत संगत विच बैठे हैं। भाई नंदलाल सिंह जी बचन करते ने, कहते ने आ हजूमे खुश के बहरे खुदा सत, आ हजूमे खुश के दफाए बला सला। मैं उस सत संगत नमस्कार करता हाँ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੰਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਐ ਮਤ ਪਾਪ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਤੇ। So we can clean all polluted wisdom by contemplating God's name. This is the ultimate reality of the universe. ये दुनिया की हकीकत है। जदों असीं गुरु नानक दे नाम दे नाल धन गुरु नानक वाहिगुरू वाहिगुरू कहते हैं ना, फिर साडे मन के अंदरों, साडे चिंतन के अंदरों दुनिया खत्म हो जाती है, केवल परमात्मा का नाम बस जाता है। क्योंकि नानक खाने बेनती तो दवाज फोड़ो हो, हर के नाम बिन झूठे सगल पुसारे। दुनिया च रहना गुजरान करना, दुनिया च रह के सानू सहूलतां दी लोड़ है। पर सच जानियो बाबा ईश्वर सिंह जी साईं जी वचन करते सन कि वाहिगुरू जिहड़ा नाम है वो दरगाह की टिकट पर मिलती किसे भागां वाले। जिहड़ी टिकट लैण दी खातर अज असीं गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरनां च बैठे हैं। अज लोड़ है, पहला भी गल्लां करनी सी और बाबा जी की किरपा हुई है काफी समय तो बाबा लखवीर सिंह जी के नाल, क्योंकि असल विच बाबा जी के नाल मेरा भरावां वाला प्यार है। मैं इन्हां नूं वड्डे भरा मनदा ते साडे मन च यही सीगा कि गुरु नानक दी सेवा करके बाबा आनंद सिंह जी ने सारियां दातां अपनी झोली च पवा लियां। गुरु नानक कहते आनंद सिंह अज सारियां दातां तेरी झोली च ने, जिन्हों तू खुश कर लिया समझ ला उन्हें मैनू खुश कर लिया। अपना रोम रोम गुरु नानक के चरणों तो बाहर प्यार विच मार दिता। खाना भुल गए पर गुरु नानक नूं नहीं भुल्ले, सौना भुल गए गुरु नानक नहीं भुल्ले। इन्ना प्यार ते दूजे पासे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जेकर बाबा आनंद सिंह जी
गुरु नानक दे चरनां दे विच सब कुछ भुल गए ते बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी दी सेवा ते उन्हां दे प्यार ते उन्हां दे नाल जिहड़ा इश्क सी ओहदे विच दुनिया नूं ते बाबा नंद सिंह जी तो बिना उन्हां नूं कोई होर नज़र ही नहीं आती सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ गुरु नानक ने बाबा नंद सिंह जी की झोली विच पाईयां सी, वो दातां बाबा नंद सिंह जी ने बाबा ईश्वर सिंह जी की झोली विच पा दित्तियां ते बाबा ईश्वर सिंह जी ने गुरु नानक दे प्यार दी गल सारी दुनिया विच फैला दित्ती। कितनी महान कमाई है बाबा जी जिन्हां ने कुल कायनात दे विच गुरु नानक दे प्यार वंडिया। साडे मन विच भी ये सी सच है, जदों किसी बंदगी वाली रूह किसी पूरे दे नाल मेल हुंदा है, कोई जन हर्षां देवे जो चरण गनु बपू शुभ रसना दीचे प्यार प्राण को। कोई मैनू गुरु नानक के नाल जोड़ता दवे, मैं अपनी जान ओहदे उत्तों ला देवां। मेरे बाबा जी ने मेरी बांह फड़ी, बांह फड़ के गुरु नानक नाल जोड़ दिता। भागां वालियो, असीं भी बाबा जी अगे यही अरदास कीती, बाबा जी तरस करो। असीं भी चाहुंदे आ तुहाडे बच्चे आ, तुहाडे सेवादार आ, भी असीं भी गुरु नानक दी गल, तुहाडी गल तुहाडे बच्चियां तक पहुंचाईए। बाबा जी ने तरस किया। सो पहला जो रात्रि समागम जिहड़ा हफ्तावारी आरंभ कीता सी, परिवार बहुत भागम वाला है। गुरु नानक दी बाबा जी की कृपा है ते समझ लो, जे अज सचखंड दे दर्शन करने ने तां इस घर विच असीं कर सकदे, क्योंकि सचखंड वसै निरंकार। जिथे निरंकार की याद वसदी है, सचखंड तो वही है। नहीं तो दुनिया के झमेलियां विच फस के कदे व्यापार, कदे बिजनेस ओपोनेंट, कदे रिलेशन ओपोनेंट, हमेशा ही असी ओपोनेंट की कंट्रोवर्सी दे विच फसी रहने हैं। पर जदों असी गुरु नानक की गोद विच आके बैठ जाने हैं ना, तो फिर उत्थे गुरु नानक ही चेते रहता है। तो फिर जदों गुरु नानक चेते रहता ना, फिर सारी दुनिया गुरु नानक दा रूप ही लगती है। पुछया सी ना करे भाई घरैया तू क्यों दुश्मनां नूं पानी पिया रहा? ते भाई कन्हैया जी कहते सच्चे पातशाह, मैं नताना, मैं अयाड़ा, मैं गरीब, कौन कहता मैं दुश्मन नूं पानी पिया रहा? मैं तां जिथे भी वेखदा तेरा स्वरूप देख के पानी पियाना, मैं तां तेरी सेवा करदा। वाहिगुरू वाहिगुरू। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे प्यारे सिखो। बाबा नानक सिंह जी ने भी हर जरे विच गुरु नानक के दर्शन करते। वो लोग कम अकल नहीं, वो लोग बदबख्त नहीं, वो लोगों के अंदर इलम नहीं है जिहड़े कहंदे गुरु नानक दे दर्शन करते। भागां वालियो, दर्शन होणगे, पर शर्त यह है, कंडीशन यह है, तुहाडे अंदर गुरु नानक दे चरनां नाल बाबा नंद सिंह जी जिन्ना प्यार होना, भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जदों आपां अज की गल करिए, अज मैडिकल साइंस ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जदों तुसीं अकाल पुरख जी अगे भरोसा करके अरदास करोगे, तुहाडी अरदास पूरी होएगी। यकीन करना, भरोसा करना पेगा कि मैं जिस अगे अरदास करता है वो मेरा मुर्शिद, वो मेरा साईं
संपूर्ण है, वो हर एक दात दे सकता। तू ठाकुर तू पै अरदास, तू मेरा मालिक है, तू मेरा माता पिता है, तू मैनू सब कुछ दे सकता। इस सानू अरदास करनी पैगी ते फिर साडे जीवन दे विच एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा, साडा जीवन बदल जाएगा। बाबा अमरदास जी कितना समा गंगा ते जाके इशनान करते ने, मन नूं ठंडक निकली। गुरु नानक दे घर विच आए, गुरु अंगद दी सेवा कीती। सेवा करदियां करदियां एक दिन गागर पिआउंदियां होइयां ठेडा बजा ते डिग पए ते किसे ने मेड़ा मारिया। अमरू नथावा ना दिने टिकदा ते ना रात नूं। गुरु अंगद सच्चे पातशाह दी हजूरी विच पहुंचे ते गुरु साहब कहंदे बाबा जी की होया? ते गुरु नानक दी तीजी जोत गुरु अंगद सच्चे पातशाह नूं गुरु अमरदास कहंदे अज मैनूं किसे ने मेड़ा मारिया कि अमरू निथावा है। ते गुरु अंगद सच्चे पातशाह कहते कौन कहता तू निथावा? कौन कहता तेरा कोई ठिकाना नहीं? सच जानियो। गुरु अंगद सच्चे पातशाह कहते जेकर तू गुरु नानक दा सचमुच अंदरों आशिक है तो एक दिन ओ हो निबड़ेगा जिहड़ा दूजियां नूं आसरा देवेगा। दातां दित्तियां सी मेरे सच्चे पातशाह ने भी तू निथावियां दी थां होवेगा, निआसियां दे आसरे होवेगा, निताणियां दी ताण भागां वालिओ। इह तां अज़मत है मेरे गुरु दी। पर गुरु के प्यार में भेजे हुए बाबा आनंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज झोलियां दातां नाल भर दित्तियां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने। ते जिहड़े बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी कोल गए, घाट उन्हां नूं भी कोई नहीं। जिन्हां ने बाबा जी के चरणों नाल प्यार पाया, अपना जीवन बाबा जी तो लेके ला दिता, घाट उन्हां नूं भी कोई नहीं। पर भरोसा करना पैना। गल तां भरोसे दी है, गल तां प्यार दी है। क्योंकि जदों तक तुसीं अपने आप को सैल्फ सैक्रीफाई नहीं करदे ना, उदों तक तुसीं किसी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकदे। प्राप्ति तुहानूं उस दिन होएगी जिस दिन तुसीं अपना सब कुछ वार दो। क्योंकि बिजनेस दे विच भी ना सानूं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पैंदा। इन्वेस्टमेंट तो बिना प्रॉफिट नहीं हो सकता। ते जे गुरु नानक दे घर विचों, बाबा जी दे घर विचों कुछ लैना है ना, ते सानूं प्रॉफिट दी थां ते पहलां इन्वेस्टमेंट करनी पैगी। इन्वेस्टमेंट किया तेरा भरोसा बाबा जी दे चरनां ते होना लाजमी है। तेरे अंदर प्यार होना लाजमी है। तेरे अंदर ये विश्वास, गल होनी लाजमी है कि मेरे बाबा जी हर गल ते हर चीज दे लई समर्थ ने। अज कई बार कई शंके करते इदां किदां हो सकदा, ये नहीं हो सकदा। भलिया क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? गल तां मैं बार-बार इक्को गल करदा, गल तां यकीन दी आ, गल तां भरोसे दी है। ते जदों असीं किसी साधु कोले चले जाने हैं ना, साधु जिवें अज दे भी कई अपने आप चाहे वो सिख धर्म दे ठेकेदार होण, चाहे कहण कि असीं शायद गुरु तो भी वध सियाणे आ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦਵੈਸ਼, ਦੁਬਿਧਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਕੜਤਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ते सच जाणियो जदों असीं गुरु नानक दे प्यार विच रंगे होए किसी पूर्ण महापुरख दे शरण विच जाने आ ते फिर ओ साधु ओ महापुरख सानू केवल परमात्मा दे वाहिगुरू जी दे गुरु नानक जी दे नाम दा दान दे। असीं कहंदे ना सही प्यारी मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता। किसे नूं वेख के सानू गुस्सा चढ़दा, किसे नूं वेख के सानू लालच हो जांदा, किसे नूं वेख के साडे अंदर गलत विचार आउंदे ने। पर जदों असीं उन्हां दे दर्शन करदे आ ना जिन्हां दा मन उस गुरु नानक दे प्यार दे विच भिज के गुरु नानक दा रूप ही बन गए ने। जदों बूंद सागर विच मिल जाती है ते सागर स्वरूप हो जाती है। उन्हां नूं मिलदे आ ना, उन्हां दे दर्शन करदे आ ते सानू उन्हां कोलों रब जी दे अकाल पुरख जी दे नाम दी बंदगी मिल जाती है। भाई नंद लाल सिंह जी कहते ने दौलत जावी कुन बंदगी, दौलत जमीद बाशिद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी, कुन बंदगी। असली दौलत कमाउणी है ते परमात्मा जी दे वाहिगुरू जी दे नाम दी कमा दौलत, क्योंकि उस तो बिना तेरा गुजारा नहीं। क्योंकि असली दौलत तो वही है ना जिहड़ी कदे खत्म नहीं होती। और जिहड़ा इंसान किते बिजनेस विच इन्वेस्ट करदा है, बिजनेस दे विच फ्लैक्चुएशन अप डाउन्स हुंदे आ, कदे घाटा ते कदे वाधा। पर जिहड़ी नाम रूपी दौलत है ना, परमात्मा दी बंदगी दी दौलत है, ਉਹ ਚ कदे फ्लैक्चुएशन नहीं आती। जो भी आएगी ਉਹਦੇ ਤੇ प्रोग्रेस ही आएगी, क्योंकि वो दौलत ना ਤਾਂ घटती है ਵੱਧ कोई जाती है ते अटल है। इस करके महापुरख आख्या करते सन, ਤੁਹਾਡਾ शरीर संसार विच रवे ते पर मन निरंकार दे देश दा वासी। अज साडे घरां च कलेश, अज साडे घरां दे विच दुख ने, तकलीफां ने। दास गुरु नानक दे उत्ते भरोसा रख के ये बचन आप जी दा साझा करदा है। जे करना सी गुरु नानक दे चरनी घुट के फड़ लईए, साडे घरां च कोई कलेश प्रवेश नहीं कर सकदा, साडे घरां च कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकदा। हुण किन्ने घर ने साडे पंजाब दे अंदर, तुहाडे शहर दे अंदर, जिन्हां च इस वेले शराब पी के झगड़े हुंदे होणगे, नशे करके, किसे माड़े काम करके घर कलेश दा अखाड़ा बनिया पिया। पर दूजे पासे आपां इत्थे बैठ के इकट्ठे होके गुरु नानक दे नाम दी बंदगी करदे आ ते साडे वर्गा सुखी कौन? कोई सुखी नहीं। भगत कबीर जी कहते असल विच तां गरीब वो है जिहदे कोले परमात्मा दा नाम नहीं हैगा, जिहदे कोले परमात्मा गुरु नानक दा नाम हैगा, ओहदे वर्गा अमीर कौन है? ओहदे वर्गा राजा कौन? वस्ता टूटी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो, उदयन परमना, मित्र ना कीर्तन, रूपहीन सब साक ना सिना, राजा सकल सृष्टि का हर नाम मन पिता। भाई हेमा होया गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी दे समय ते सिखां नूं गुरु अर्जन साहिब पातशाह कहंदे, सिखो चलो अज मैं तुहानूं एक राजे दे नाल बादशाह दे नाल मिला के लिआवांगा। तुरे ने जंगल विच पहुंचे, गुरु साहब कहंदे आओ आपां इत्थे बैठ के बादशाह नूं उड़ीक करदे हां। ते जदों 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकले, काफी समा बतीत होया
ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਨ ਚ ਤਾਂਘ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੇਮਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹੇਮਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇਮਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਚੱਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਥਿੜਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੁਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਤੀ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਿਹਾਰ। I don't care about this. I don't have any comfort, but I have only one thing, and that is Vaheguru's name. मेरे को कुछ नहीं, I don't care. मेरे को सिर्फ वाहिगुरु जी का नाम है। मैं वाहिगुरु जी के नाम के नाल ही अपनी जिंदगी पार उतारा कर लेगा। क्यों? क्योंकि जदों मैं वाहिगुरु के नाम के नाल जुड़ गया, मेरे जीवन च आनंद ही आनंद है। वो आनंद जो कदे मुड़ नहीं सकता, जो कदे खुश नहीं सकता। असी रोज बचन सरवण करते हैं, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु ने पाया। भागा वालियो गुरु नानक दे भरोसा करिए, नाम दे नाल जुड़िए, बंदगी दे नाल जुड़िए, अपने जीवन को सफल करिए। सो सच्चे पातशाह गुरु नानक तरस कर साडे जीवन का पार उतारा हो जाए। ते जिवें बाबा नानक सिंह जी के जीवन की एक घटना है, कई बार गुरु प्यारियां तो सरवण की। कहते बाबा नानक सिंह जी शाम के दीवान वेले जदों कथा विचार जां कीर्तन हुंदा सी ते सेवादारां नूं बचन करदे सन कि तुसीं भाई मक्खण शाह लवाणे वाली साखी सुणाओ। एक दिन सुनाई, दूजे दिन फिर बचन कर दिते कि साखी सुणाओ। तीजे दिन फिर करदे काफी दिन ओही साखी सरवण करदे ते किसी के मन च सवाल पैदा हो गया कि बाबा जी ये साखी रोज क्यों सरवण करदे? ते बाबा जी ने बचन कीता, कहंदे ए साखी असीं तां सरवण करदे आ सानू भी भाई मक्खण शाह वांगू अरदास करन दी जांच आ जाए। जिवें एक अरदास कीती ते गुरु तेग बहादुर ने उहदे डुबदे हुए बेड़े नूं मोढा ला के बन्ने ला दिता, सानू भी अरदास करनी आ जाए कि धन गुरु नानक सच्चे पातशाह साडी जिंदगी दी किश्ती तूं मोढा ला के साडी जिंदगी दा पार कर सकन। भरोसा करो, प्रेम करो तां बाबा नानक सिंह जी वर्गा किताबां पढ़ के अल्फाज बोलदे ने ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है, पर प्यार दे विच भिज के उस गुरु नानक दी बंदगी करोगे ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है। ते प्यार विचों ही ओ ज्ञान, ओ इल्म, ओ एजुकेशन उपजदी है जिस एजुकेशन दे धारनी दे सामने लखां किताबां पढ़न वाले ब्रह्मदास भी फिके होते। ये सच है क्योंकि बाबा नानक सिंह जी दे कोले आपने आप नूं गुणी ज्ञानी अखवाउण वाले कह रहे सी, तुसीं तां वेलड़ हो जी, तुहानूं की आंदा अनपढ़ बाबे हो, अनपढ़ साधु। बाबा जी कहते सच्ची ऐसा, कहते सानूं कुछ आंदा चाहे नहीं, सानूं गुरु नानक दे चरनां नाल प्यार करना। बाबा आनंद सिंह जी ने बाबा ईश्वर सिंह जी को थापड़ा दिता है
कि तुसी इन्हां दी शंका निवृत्त करो भी जिहड़े गुरु नानक नूं प्यार करन वाले हुंदे ने ना, उन्हां नूं गुरु नानक सब कुछ बख्श दिंदा है। उन्हां नूं किसी यूनीवर्सिटी विच जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, किसी कॉलेज विच जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। ते जदों बाबा ईश्वर सिंह जी ने उन्हां नूं गूढ़ ज्ञान दे कल्ले कल्ले जवाब दे के संतुष्ट कीता, अपने आप नूं कुड़ी ज्ञानी गवाउण वाले भी बाबा नानक सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी दे चरनां दे उत्ते ढह पै। बहुत सारियां साखियां घटनावां ने सच्चे पातशाह जी तरस करन अगले समागमां दे विच बाबा जी आप सेवा लै लैणगे। चलो हुक्म होया देखो सानू भी जो कुछ मिलिया वो बाबा जी के दर तो मिलिया। दास दे जीवन दे विच जो दास दे परिवार नाल संबंधित है, क्योंकि एक तो होंदी है गल सुनी सुनाई, एक जिहड़ी प्रैक्टिकल दास दा नानका परिवार ढोलना पिंड बाबा ईश्वर सिंह जी दे चरनां दे नाल पवित्र ते रूहानीयत दी जरखेजत दा वो नमूना वो धरती है जिथे बाबा ईश्वर सिंह जी का आगमन होया। दास का नानका परिवार कामरेड से, कामरेड सानू पता है कि तर्कवादी होंदे आ, थोड़े रैशनल होंदे आ, ते दास मामा जी सन जो कि काफी उम्र के सीगे, हुण तां उन्हां दी डेथ हो गई है। उन्हां दा जन्म होना सी पर लेबर कॉम्प्लिकेशन करके प्रॉब्लम आ रही सी कामरेड, पर बाबा नानक सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी दे चरनां दे भौरे सन। मन च फुरना आया भी भलिया जिहड़ा इलाज किते नहीं ना हुंदा वो बाबा जी के घर में जाके इलाज गुरुद्वारा साहब बने हुए ने सुख सागर, बाबा जी की कृपा बाबा नानक सिंह जी हुणां ने आप हत्थीं तैयार करवाया। अरदास बेनती की कि बाबा जी ऐदां धर्म पत्नी नूं बच्चा होने वाला ते समस्या है, कृपा करो तुसीं आप ही मेहर करो, आप ही तरस करो। नमस्कार की अरदास बेनती करके गुरु घर जो बाहर निकले ते ज्यों ही दरवाजे तो निकल के घर वाल जा रहे सन तां पिछों आवाज आई, भलिया तू फिक्र क्यों करदा, जिहड़ा कुछ होना उन्हें अपने आप ही हो जाना। पिछे मुड़ के देखिया ते कोई भी नहीं। घरे आए क्योंकि जदों घर विच ऐदां दी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हुंदी है ना ते बंदा ऑटोमैटिकली इंटरनली डिप्रेशन नहीं हुंदा भी पता नहीं की होना की नहीं। तां जदों घर कोल आए भी मुड़े ते अंदरों आवाज आती है भला होवे सब कुछ ठीक हो जे। घरे अंदर पैर पाया ये मेरे खुद दे नाना जी दी घटना ते घरे आया नूं बधाइयां देणियां शुरू कर दित्तियां, करतार सिंह बधाइयां तेरे घरे बेटा होया ते मन दे विच क्योंकि आशिक पहले ही सी बाबा जी दे चरनां दे नाल बेटा चलो ठीक है। समा निकलिया ते नाना जी कहंदे भी चलो मैं जाके नानकसर बाबा जी दा नमस्कार करदा ते नाले उन्हां दा धन्नवाद करके आंदा। ते बाबा जी बाग विच टहल रहे सन ते नाल सेवादार सी। नाना जी ने दूरों नमस्कार बुला के खड़े हो ते किसी ने कोई गल कीती ते बाबा जी वचन पता की कहंदे अजकल साडा साध पड़ाका दा लोकी तां सानू बच्चे जमाउण दी खातर दाइयां बनाईयां हुण इह जिहड़ियां गल्लां ने ना ये गल्लां जिहड़ा आम शंकावादी इंसान होएगा ना वो सुनेगा वो कहेगा भी
ये कदे हो नहीं सकते। पर एक गल मैं वार वार कहना, भरोसा ते प्यार पाके देख लो। हुण ये कदे हो सकदा भी मैडिकल साइंस कहती आ कि तुहाडा धड़ शरीर नालों वखरा हो गया ते तुसीं जिउंदे नहीं रह सकदे। बाबा दीप सिंह जी कहदा खंडा गल तां भरोसे ते प्यार दी सी। खेड़ तां गुरु नानक दे कर प्यार ते भरोसे दी आ। कहंदे सानू तां लोकां ने दाइयां बना लिया ते नाना जी ने जाके चरण फड़ ले ते कहंदे सच्चे पातशाह बाबा जी की करिए, जदों भी दुख कोई तकलीफ आउंदी आ असीं तुहाडे चरनां तो बिना होर जाना कित्थे। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, सानू भी अपने चरणों का प्यार ते भरोसा बख्शण ताकि साडा भी लोक सुखीए परलोक से हो जाण। फिर अपने आप ही साडी जिंदगी दे कारज सारे हो जाने। सो बहुत बहुत धन्नवाद गुरु नानक सच्चे पातशाह दा भरोसा दा। मेरे साईं बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईसर सिंह जी का आप गुरु प्यारे सेवादारां दा, सेवकां दा, सेवक परिवारां दा असीं उपराला कर रहे हां। बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईसर सिंह जी दी रहनुमाई, उन्हां दी अगवाई हेठ कि असीं गुरु नानक दी गल जिहड़ी है वो घर घर कीती जावे। सो आप जी दा धन्नवाद जिहड़ा सहयोग दे रहे हो, क्योंकि लुधियाना शहर की संगत काफी बाबा जी के घर की बहुत बड़ी सेवादार है ते सहयोगी है। नंबर 2 के उत्ते आपां सारे रल मिल के गुरु नानक की गल, बाबा जी की गल करनी है। सो बहुत बहुत धन्नवाद गुरु साहिबदार बाबा जी का, बाबा लखवीर सिंह जी का, जिन्हां दी अगवाई दे हेठ ये सब प्रचारक मुहिम शुरू की गई है। आने वाले समयां दे विच बाबा ईसर सिंह जी दी अपार बख्शिश सदका ठाठ ईसर सरबड़ैच लुधियाना उत्थे गुरमत दीयां क्लासां, दुनियावी पढ़ाई दीयां क्लासां, कथा कीर्तन सिखलाई आरंभ की जाएगी। सो आप जी का घर है, बाबा जी का घर है, आप जी ने हर तरीके के नाल सहयोग देना। और सानू पता ही है कि आप जी का सहयोग है, सानू तानू कहण दी लोड़ नहीं, क्योंकि वी आर ऑल वन फैमिली। असीं सारे इक्को परिवार दे हां। साडे मुखी बाबा नंद सिंह जी ते बाबा ईसर सिंह जी। सो भुलां चूकां दी खिमा, गलतियां दास दी झोली गुरमत अपनी झोली च पा के गुरमुख हंस बन के जीवन सफल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चूकां दी खिमा, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।